social norms, a lot of us are deriving our values from the media and hence lack a firm foundation to base our belief system. And in between all of this, navigating marriage in this era has become a serious challenge, especially for Muslims. Today's talk will address this difficult and confusing issue. And for the talk, we have Sir Hassan Hamid, a PhD student in Princeton in the Department of Physics at Princeton University. His his interests lie in Islamic and History, intellectual history in the history department, not in the physics department. in the history department of Princeton University. He holds a master's in modern South Asian studies from the University of Oxford, where he was a Wiki Noon scholar from Pakistan. Hassan graduated from IBA Karachi as the Javed Akhai Gold Medalist for the Social Sciences and Liberal Arts School of 2020. He was also the first exchange student from IBA to LUMS. So over to you, Hassan. Thank you so much, Salman. Hi, Jazakallah khair. Assalamu alaikum, everyone. Thank you all for tuning in. Special thank you to the LRS for once again giving me a chance to talk about what I think is a very, very important issue. Just a couple of logistical things. In case अगर मेरी आवाज चली जाए बीच में या कोई तस्वीर वगैरह चली जाए, तो please just call me. Some of the organizers have my WhatsApp number, so please just call me directly. Also, I am going to turn my self view off क्योंकि वो बहुत अजीब सा लगता है अब आप अपने आप को ही देख रहे होते हैं गुफ्तगू करते हुए. But I would appreciate if for those speakers, for those listeners जिनके लिए possible हो कि वो अपनी वीडियो प्लीज ऑन कर लें, ताकि लगता है कि फिर आप एक्चुअल इंसानों से गुफ्तगू कर रहे हैं rather than ये कि मतलब ऐसी एक अजीब से छोटे से कैमरे को देख रहे हैं. जज़ाकल्लाह खैर. Okay, so let's begin. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन. तमाम तारीफ़ें, तमाम शुक्र अल्लाह ताला के लिए और सलामती और रहमत हो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर. To get us started into the topic today, let me quote a line from Usher, who is the hero of Humsafar. He's talking to his wife, Khirat, and he tells her how marriage normally happens. So he says, लोगों की जिंदगी की तरतीब यूजुअली हमसे मुख्तलिफ होती है. पहले वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर मोहब्बत करते हैं, फिर शादी करते हैं. हमारी तरतीब मुख्तलिफ हुई. पहले हमने शादी की, फिर पसंद किया और अब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई. What Usher is capturing in this dialogue, I think, is, especially in the first part, a certain ideal of marriage, which we think of as love marriage, but which is closely associated with a lot of other things in the minds of young Muslims today. And I want to talk about is the charm, is the power of a certain idea on the minds of young Muslims today. And that ideal is the ideal of a romantic relationship, a boyfriend and girlfriend relationship leading towards marriage. When we look at our generation today, whether they're religious, kind of practicing Muslims or not, in any case, there is ये जो ideal जिसका मैंने जो तसव्वुर जो मैंने जिक्र किया, for a lot of us, it might be unattainable. But yet the power that this idea exerts for our imagination, कि जब हम ये तसव्वुर करते हैं कि what do these things look like? Valentine's Day, of course, is an instance where a lot of these ideas come out into the open. But it's just one instance. The charm that this idea exerts on us transcends, any particular day. In fact, for a lot of us, I would even say कि सोते जागते हमारे जहनों में ये तसव्वुरात होते हैं, ये फैंटेसीज होती हैं कि वो ऐसी रिलेशनशिप जो है वो कैसी लगती होगी. And a lot of the source, where are we getting this from, is I think indebted to Western media more so than any other source. One could argue that even Bollywood के अंदर भी बहुत सारी फिल्मों के अंदर एक रोमांस का certain idea बहुत ज़्यादा prevalent होता है.
तो आप लोग तो जाहिर है नहीं देखते बॉलीवुड फिल्में वगैरह, लेकिन हम भी नहीं, बिल्कुल नहीं देखते, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन हमसे पिछली जनरेशन में कभी अम्मी अब्बू वगैरह बताते हैं कि जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वगैरह, इस किस्म की कुछ टाइटल्स होते थे। तो उनमें वो मतलब शाहरुख खान जो है वो इसी तरह एक खातून से ट्रेन में मिलता है और मोहब्बत हो जाती है और फिर वो उनकी शादी हो जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट हमारी जनरेशन के लिए आई थिंक दैट दो सोर्सेज आर नॉट दैट relevant. What we have been, what we have brought up witnessing, I think, is a lot of Western media, specifically Disney shows, agar aap mein se kisi ne dekhe ho, like, they're geared towards teenagers, shows like Hannah Montana, Zack and Cody, you know, the Jonas Brothers, uh, all of these, right? The way that they depict the public school life of the US, के उन मतलब यूज मोस्ट पाकिस्तानी बच्चों को, स्पेशली फ्रॉम आवर सोशो इकोनॉमिक क्लास, जो बच्चे अंग्रेजी में तालीम हासिल करते हैं, they probably have a very good sense of what US public school life looks like, and that is geared around these issues of sexuality, of romance, of relationships. We have these images in our minds कि एक तो वो यूएस स्कूल्स के अंदर यूनिफॉर्म नहीं पहनना होता, तो आप कुछ भी पहन सकते हैं, जो कि बहुत कूल बात लगती है until you realize कि मतलब बहुत सारे कपड़े इस्त्री करने पड़ेंगे और बहुत ख्वारी होगी, बट वो यूनिवर्सिटी में आके अंदाजा होता है। स्कूल लाइफ में तो बड़ा अच्छा लगता है कि यूनिफॉर्म नहीं पहनना होगा। सिमिलरली वो उनके लॉकर्स होते हैं, और वो लॉकर्स में जो है ना, कभी वो किसी लड़की के लॉकर में कोई लड़का जो है वो एनोनिमस सा खत छोड़ जाता है, और कभी जो खातून है वो किसी के लॉकर के अंदर कोई फूल डाल देती हैं, and all of these things, they attract us, and I think we need to recognize the fact that they attract us and they have a very powerful hold on our imagination. And I think we need to talk about, well, what happens when you take this ideal and you implement it in society, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे माशरे में ये चीज़ें एक तसव्वुर ही हैं। For many of us these things are not that practical, और माशरा इनकी इजाज़त हमें नहीं देता। बहुत सारे घरानों में, ऑब्वियसली पाकिस्तान का एक बहुत डाइवर्स किस्म का माशरा है, वहाँ पे आपको पूरी लाइक you get the whole spectrum of views on some of these issues. But generally हमारे माशरे में, फॉर इंस्टेंस, जितनी अमेरिका में या फ्रांस में जितनी ज़्यादा नॉर्मल है प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स, जाहिर है उतनी तो पाकिस्तान में नहीं है, और एक माशरे का एक प्रेशर भी है टू कन्फॉर्म, और एक सोशल बैकलैश भी होता है, जिसकी वजह से मेनी ऑफ अस we are unable to talk about these things. In fact, आज से चंद साल पहले एक बहुत मशहूर आर्टिकल आया था, कहाँ पे आया था, किसी कैनेडियन मैगजीन में आया था, बट इट वाज अबाउट रिप्रेस्ड सेक्सुअलिटी इन पाकिस्तान। और वो आर्टिकल की ऑथर जो है, शी वांटेड टू आर्ग्यू कि पाकिस्तान में चूंकि सेक्सुअलिटी के एक्सप्रेशंस नहीं हो पाते, इस वजह से बच्चों की बड़ी कोई रिप्रेस्ड सेक्सुअलिटीज हैं, एंड दे डू ऑल काइंड्स ऑफ वियर्ड थिंग्स बिकॉज ऑफ दैट, दे वॉच लाइक एनिमल porn videos, etc., etc., etc. And the author was celebrating her own freedom, which she found in like hotels and cars and parking lots, etc., etc. What I want to do in this talk today is to talk about what happens, or what does a society look like when this ideal of a premarital relationship becomes normalized. Uske stakes kya hai? What are the stakes in this debate? But I'm just not going to talk about this idea. I'm in the first half, I'll be talking about this idea. In the second half, I want to talk about what are the sources that have made this idea, despite all of its problems, so attractive in our eyes, right? And those are and the main source of that is the problems in our own kind of way of doing things, in our own kind of paths to marriage, which is a very kind of like arranged marriage, आप उसे कह लें या जो भी कह लें. So the hope is that by understanding some of the problematics, in both sides, we can reach a more informed understanding of how should we think about, approaching this thing which is called marriage. So with that introduction, let us talk about let us talk about the love ideal. So one of the biggest issues with the free premarital relationships,
leading to hopefully to marriage, but not always, is precisely the fact कि वो एक hopefully ही रहता है. And there is inevitably almost the threat of a heartbreak. तो हमसफर में हम देखते हैं कि सारा और अशर बचपन से दोस्त हैं और बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं, और सारा जो है वो अशर को बहुत पसंद करती हैं, लेकिन अशर उनको पसंद नहीं करते. तो जब सारा को ये बात पता चलती है और जब उन्हें पता चलता है कि अशर की तो खिलत से शादी होने वाली है, she attempts suicide. And we, obviously this is a drama, but the threat of heartbreak and the trauma of heartbreak is a structural condition for the possibility of these relationships. Because the very idea of what is the idea of a premarital relationship? You can think of it as having two domains, right? शादी के अंदर क्या होता है? शादी के अंदर there is a certain kind of emotional intimacy and a certain kind of physical intimacy. Both of these things, हमारा मजहब इस्लाम हमें कहता है कि भाई ये चीजें आप जो हैं, किसी गैर खातून के साथ, जिसके जो आपकी मतलब बीवी ना हो, या किसी गैर मर्द के साथ जो आपका शौहर ना हो, you cannot indulge in these things with them to a certain extent. When we normalize premarital relationships, we are normalizing both these two dimensions, कि आपकी वो एक certain level of emotional intimacy भी develop होना चाहिए और एक certain level of physical intimacy भी develop होना चाहिए, and that's okay, and that's okay. उसमें मसला ये है कि when you allow emotional intimacy to happen, the threat of heartbreak is very, very real. And ये बहुत obvious सी बात लगती है, but we forget about this thing. क्योंकि जब आपको वो स्पेशली वैलेंटाइंस डे वगैरह में हर जगह रोजेस जा रहे हैं और हर जगह सब अच्छा हो रहा है और हर जगह मोहब्बतें फल फूल रही हैं, और आपको इस तरह का इंप्रेशन आता है कि यार ये मजहबी लोग जो है ना ये मोहब्बतों के खिलाफ हैं. आपको समझना चाहिए भाई इन मोहब्बतों की फ्लिप साइड क्या है. इन मोहब्बतों की फ्लिप साइड इज अ लॉट ऑफ एंजाइटी, अ लॉट ऑफ डिप्रेशन, एंड दिस इज सो प्रेवलेंट. अगर आप एक लम्हे को वो हॉलीवुड फिल्म के अलावा वेस्टर्न सोसाइटी को खुद पढ़ें कि उनके खुद ऑथर्स क्या लिख रहे हैं, वहां पे खुद मर्द खवातीन क्या लिख रहे हैं इन एकेडमिक जर्नल्स, इन पॉपुलर न्यूज़पेपर्स वगैरह, आपको अंदाजा होगा कि ये कितना बड़ा मसला है. इनफैक्ट 13 Reasons Why is a novel or later made a Netflix TV series, which was recently one of the top 3 or the number 1 trending show in Pakistan on Netflix Pakistan. Over 13 Reasons क्या है? 13 Reasons Why is the story of a girl who commits suicide when she's a teenager, and she gives 13 reasons why she does that, and most of them have to do with sexuality. Most of them have to do with sexuality, and most of them revolve around what happens when a girl feels that her emotional intimacy was broken, what happens when she feels that her physical intimacy was broken. And coming to the physical intimacy part, when you normalize the idea of sex outside of marriage, you are normalizing or even if you're not normalizing, but the idea will become normalized, and it has become normalized, of commitment free sex. Commitment free sex से क्या मुराद है? Commitment free sex से मुराद ये है कि शादी जो है मुसलमानों के यहाँ और कहीं पे भी, but specifically मुसलमानों के यहाँ, as I said earlier, it normalizes a certain kind of emotional intimacy, it normalizes a certain kind of physical intimacy. लेकिन वो physical intimacy possible करने के लिए, यानी कि in other words शादी possible करने के लिए आपको एक बहुत लंबी चौड़ी ख्वारी से गुजरना पड़ता है. उस ख्वारी में आपको निकाह करना पड़ता है और 2 गवाह चाहिए होते हैं और निकाह पढ़ाया जाता है और वो कबूल है लिया जाता है. और अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तो बड़ा सा इवेंट किया जाता है और बहुत पैसे खर्च किए जाते हैं और मेकअप कराया जाता है और फोटो एटसेट्रा एटसेट्रा. द पॉइंट इज बहुत सारी ख्वारी से गुजरना पड़ता है, but that khwari makes a certain kind of intimacy which was haram for you before halal. And also it comes with responsibilities, like वो एक दफा की नहीं, वो आगे अब आप फंस गए, मतलब आप फंस गए. So the मर्द, you are in a divine contract, right? अब आपको मर्द को जो है वो औरत की जिम्मेदारी उठानी है फाइनेंशियल तौर पे. You can't just say कि नहीं अब मैं हो गया ना, अल्लाह हाफिज. And similarly, the wife has to fulfill certain obligations and responsibilities towards her husband.
कमिटमेंट फ्री सेक्स का मतलब ये है कि आपको ऐसी कोई आप बाउंड नहीं होते, राइट? सो you go to a movie with someone and you like them and you come back home with them, um and you can do what you want to do, and then you can go your own ways, and there's no legal requirement, there's no legal bonding, and not even moral or ethical bond. Even though, as I said, a lot of people are now questioning this, and a lot of people are writing ke the idea of sexual liberation, the idea, West के अंदर obviously ये एक history है, the sexual revolution 70s 80s वगैरह के अंदर, जिसके बाद जो है वो इस तरह की बड़ी बुक्स आई कि why the Arab worlds, जैसे एक बहुत मशहूर बुक है हेड स्कार्स एंड हाइमेंस, why the Arab world needs a sexual revolution वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें पाकिस्तान में भी बहुत होती रहती है मखसूस तबकों में कि बड़ी रिप्रेस सेक्सुअलिटी है, लिबरेशन चाहिए। तो अगर आप पढ़ें कि भाई उस लिबरेशन सो कॉल्ड जो प्रॉमिस की गई थी उसके इफेक्ट्स मगरिब में खुद क्या हुए हैं, राइट? then you look at the literature and you realize कि भाई this is a huge issue, commitment free sex. Now moving on, the threat of heartbreak does not end with marriage. And here I want to draw upon some of the insights from a French movie, which I don't think, did any of you get a chance to see Le Passé, The Past? Anyone? किसी ने भी नहीं? चलो कोई बात नहीं. It is one of the most phenomenal movies that I've ever watched, and it's just amazing. But we'll try and talk about, we'll try to talk very little about it क्योंकि आप सब लोगों ने देखी भी नहीं है. But basically there's a protagonist, Mary, who एक खातून है, बहुत French खातून है. She's had 3 divorces. Now she's in a 4th relationship with a guy. Now this guy, his name is Ahmad, he's an Arab. He's already married, and his wife, when she found out that he was having an affair with Mary, she committed suicide. Now, there are a lot of problematics over here, right? एक problematic तो ये है कि what are the conditions, what are the social conditions that allow a woman to change 3 husbands or to get divorced 3 times and to fall into relationships 4 times? And the key point is that those are the same conditions, right? So the same conditions that allow a woman or allow a man to indulge in premarital or extramarital relationships, right? But let's think about premarital relationships. वो जो conditions जब आप बनाएंगे ना ऐसी जिनमें लड़के लड़कियां खुले तौर पे पार्क्स वगैरह में घूम सकें, और सी व्यू जाके आपको ये डर ना हो कि यार ये जो है ना यहाँ पे अगर मैंने हल्का सा कुछ किया तो वो पुलिस वाली गाड़ी जो है वो पीछे से आ जाएगी और जो है ना हमें आके पकड़ लेगी. तो अगर आप उस तरह का माशरा क्रिएट करना चाहते हैं, जो हम सब लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं दिल में हम सब लोग चाहते हैं कि हम लम्स के अंदर भी खुल के फिर सकें, क्या मतलब इतनी ये मोहब्बतों पे रोक टोक. तो भाई उस माशरे में फिर आप इस किस्म की कैद नहीं लगा सकते कि जी ये सिर्फ गैर शादीशुदा लोग करेंगे. When you remove the idea that there should be a certain kind of segregation between men and women on both the physical and the emotional levels, तो वो चीजें फिर आप वो कंडीशंस जो है ना जो उस चीज को अलाउ करेंगी, वो कॉफी हाउसेस, वो पार्क्स वगैरह, वो आप गैर शादीशुदा लोगों के लिए महदूद नहीं रख सकते. और जब आप उनके लिए महदूद नहीं रख सकते तो जब आपकी शादी हो भी जाती है तो देयर विल ऑलवेज बी द थ्रेट ऑफ someone is running away with your girl or guy. And so the same conditions that were giving that woman in the movie the freedom to change 3 or 4 husbands are also taking away her freedom to remain with the guy that she wants to be with, right? So there are implications of this for mental health. I've already spoken about the profound implications or the profound anxieties that एक सेकेंड सॉरी, अचानक से आप सब लोग मेरे पास से हट गए और सिर्फ मैं अपने आप को नजर आ रहा हूँ, जो थोड़ी सी अजीब सी बात है. पर चलो खैर कोई बात नहीं.
So, there are profound implications of, heartbreak, and there are profound implications of this anxiety of this entire game. And when you're thinking about mental health, पाकिस्तान में एक बदकिस्मती ये है कि कुछ बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशंस जो लोग इनिशिएट करते हैं, they are unfortunately oftentimes so bound up with some of their own biases that they refuse to take things from a broader picture. So I think it's fair to say कि पाकिस्तान में mental health की conversation, especially on university campuses, it is spearheaded by a lot of, quote unquote liberal people, right? Quote unquote liberal secular people. And it's a huge conversation. It's a very important conversation. मतलब आप, and it generally follows कि, the more liberal the places, the more the emphasis on things like mental health. उसके लिए अगर आपको anecdotal evidence चाहिए हो तो, आप देखें कि मिसाल के तौर पे लम्स ड्रामा फेस्ट वगैरह में how many dramas, how many skits are just made about mental health. अब तो खैर मतलब बंद हो गया. But and you can compare like some of the elite universities, IBM में, Indus Valley वगैरह वगैरह में कितनी ज्यादा बात होती है mental health के बारे में. And usually the class of people that's doing that is, the liberals and the seculars. And that's a very important conversation that we all need to have. The only question is कि क्या मेंटल हेल्थ पे गुफ्तगू करने का मतलब यही है कि हम ये बात करें कि जी यूनिवर्सिटी में काउंसलर्स होने चाहिए, और हम ये बात करें कि जी seeking, counseling is not a bad thing. That is an important thing, but is that the only thing that we need to be focusing on? Why not focus on some of the structural conditions that are creating these anxieties in the first place? But unke bare mein, people, especially a lot of these people, will not talk about why, because wahan pe एक ideal attack हो रहा है, and that ideal is freedom. और कहेंगे कि नहीं, प्री मैरिटल रिलेशनशिप वगैरह में खुली आजादी होनी चाहिए, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनके लिए हम मेंटल हेल्थ काउंसलर्स वगैरह रखेंगे, और या रिलेशनशिप काउंसलिंग वगैरह कर देंगे. लेकिन हम द आइडिया ऑफ प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स वगैरह पे वो दैट इज नॉट अप फॉर क्वेश्चन. वो तो अगर आप बातें कर रहे हैं तो मतलब आप क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं. वो तो वो कौन, क्यों? बिकॉज फ्रीडम, तो फ्रीडम की एक कीमत है, एंड दैट प्राइस, the West is paying that price, right? I mean, a lot of the left, at least in the West, is paying that price, and they're willing to pay that price. And हमारे यहाँ भी it seems कि पाकिस्तान में भी जो लोग इन चीज़ों को holistically नहीं देखना चाहते, they are willing to pay that price. But I think as Muslims, हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम इन issues को एक holistic perspective में देख सकें. We learn from the best that the West has to offer. We learn from these issues जो कि जाहिर है mental health awareness वगैरह भी in many ways, ज़्यादा वो वेस्ट में इमर्ज हुई है, और फिर यहाँ से हमारे लोगों ने उसे टेक अप किया है. So that's a good thing, right? But we also need to think about, well, what are the conditions in which that issue has arisen in the West, right? And how can we avoid some of those conditions? So just the last thing that I want to say about the love marriage ideal, or the relationship free wala ideal, that is, when the threat of divorce is so real, when the threat of the relationship breaking up is so real, the woman needs to be financially independent. And so in a society which normalizes these relationships, there will be an existential pressure on women to join the workforce. And that in turn will bring the family under immense pressure. And I mean, ये बहुत सीधी सी बात है. आप हमारे मतलब मेरे अपने घराने में, some of my sisters work, और अगर आपकी बहन डॉक्टर हो, या आपकी बहन एक बहुत हाई प्रेशर कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम करती हो, तो it is not possible for them to look after a 1 year or 2 year or 3-year-old child. So in that case, what will happen, practically speaking? या तो आपके अगर घर में आपकी दादा दादी नाना नानी वगैरह हैं, वो उनका ख्याल रखेंगी, या फिर the modern solution is daycare. And what is daycare? It's part of the market. So when you had to send women into the workforce and the family came under pressure, what was the solution, at least as espoused in the West? कि भाई आप daycare खोल दें, और वो daycare में क्या होगा? It will employ even more women, right? So the market will expand, and the market will start to take over all of those functions
which were earlier performed outside the domain of the market. In other words, the interests of capital will be served. So we are about halfway now. So I think I'll just move quickly forward because I want to have some time for discussion as well. तो अगर ये issues play करते हैं हमारे romantic ideal को, what are some of the why is it that so many of us are still so powerfully attracted to them? And I argue that it's not so much that this ideal itself has a lot to offer us, or it has inherent lots of advantages. I mean, obviously एक sensual appeal to है ही ना इस ideal की, and that is something which I did not talk about because I think that's kind of obvious. But but there is that aspect as well. There's also, apart from some of these factors, there's a sensual appeal of these ideas, right? The idea of the heterosexual kiss is so ingrained in us from the time that we were kids. So आप देखें ना, Sleeping Beauty के अंदर, बचपन में हम सबको पढ़ाई जाती है ना, Sleeping Beauty के अंदर शहजादा शहजादी को चूमता है and she arises from slumber, right? Beauty and the Beast के अंदर, the power of the kiss is so much कि it enacts an ontological transformation. आपकी being बदल जाती है from a beast to आप खूबसूरत शहजादे बन जाते हैं. मुझे याद है वो अभी कुछ साल पहले जब वो केट मिडल्टन की शादी हुई थी शहजादे से, and it was being covered live, lots सब टीवी चैनल्स पागलों की तरह वही दिखा रहे थे. It was so interesting. Some of my friends were like कि यार जिस सीन का शुरू से इंतजार था उसके टाइम पे वो पीटीवी और पाकिस्तानी चैनल्स जो है ना वो ऑडियंस को दिखाने लगे, एंड एवरीवन वाज सो डिसअपॉइंटेड कि यार ये क्या हो गया. तो there is obviously a sensual appeal of these ideas as well, but keeping that aside, and then you can't keep that aside, right? I mean, वो charm तो है उसमें, and we need to recognize that charm, but we also need to recognize all of these things कि ये सारे मसाइल दुनियावी तौर पे इस idea के साथ related हैं when you actually implement it in practice. Now let's move back to हमसफर. अशर को उसके वालिद कहते हैं कि भाई मैं बड़ा गिल्टी हुआ हूँ, मैंने अपनी बहन की कोई ख्वाहिश जो है वो कभी नहीं मानी, और अब मेरी बहन चाहती है कि उसकी बेटी की शादी हो जाए उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो मरने वाली, क्योंकि उसे कैंसर हो गया. अरे पाकिस्तानी ड्रामों में आप कैंसर से ही मरने वाले होते हैं बहुत जल्द, तो बेटा तुम जो हो ना, तुम उससे शादी कर लो. अशर कहता है कि मैं उसे जानता भी नहीं, शादी कैसे कर लूँ? और फिर शादी के बाद भी वो बड़ा बड़ा बेचारा परेशान होता है. तो वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की को शामिल कर दिया गया जिसे मैं जानता भी नहीं. नाउ I mean, हमसफर is a good example because उसमें जितनी incompatible marriage दिखाने की कोशिश की गई है वो बहुत ही रेयर है. मतलब हमारे यहाँ माना कि अरेंज मैरिजेस के अंदर ऑफ्टन टाइम्स कंपैटिबिलिटी को नहीं बहुत ज़्यादा देखा जाता, पर वहाँ तो एक्सट्रीम ही कर दी ना. वहाँ तो मतलब सोशो इकोनॉमिक क्लास भी डिफरेंट है, शहर भी डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, एजुकेशन डिफरेंट है. वो अशर जो है वो पता नहीं दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हुआ है जो कि येल बताई गई है, हालांकि है नहीं, झूठ बोल रहे हैं वो लोग. और वो बेचारी खिलत किसी थकी हुई यूनिवर्सिटी वगैरह से पढ़ के आई है, तो कोई मैच नहीं है, जबरदस्ती शादी कर दी जाती है, लड़का लड़की के आपस में कोई बात ही नहीं करने दी जाती. मतलब जितने मसाइल हम सोचते हैं ना कि जी अरेंज मैरिजेस में क्या मसाइल हैं, वो सब वहां पे यकजा कर दिए गए हैं, which is good because it allows us to see some of these issues कि भाई आप ऐसे कैसे जो है वो मतलब किसी की भी किसी से उठा के शादी कर देते हैं. And I think incompatibility, especially we see around us, हमारी generation, I think especially, and a lot of women especially, I think, have seen कि उनके उनके इर्द गिर्द marriages where a very ambitious, very driven girl is married off into a family which does not want her to do anything except cooking, etc., except domestic work. And similarly we see marriages jahan pe there's a very ambitious guy who wants to achieve things in life, और उसकी एक ऐसी खातून से शादी कर दी जाती है who only cares about material benefits, right? English literature जिससे हम बहुत दूर हैं, हम उर्दू लिटरेचर से भी बहुत दूर हैं, उसमें कितनी
amazing example है. There's this novel called Middlemarch by George Eliot. It's considered one of the most famous novels ever. And इसके अंदर this is shown so brilliantly कि there's a doctor, Dr. Lydgate, you know, who wants to do something for science and he wants to, you know, contribute to knowledge, etc. और उसकी शादी हो जाती है एक लड़की रोजामंड के साथ. And you know, Rosamund, you know, उसको इतना girly girl है वो कि, you know, she just likes, you know, nice things, you know, and nice things require money. And you know, when a marriage thinks of money as the ultimate goal, तो फिर बाकी other goals, you know, have to go by the wayside. So we see these things around us, right? We see these dysfunctional marriages around us, and we think कि, you know, hopefully if I'm choosing my own partner, तो compatibility थोड़ी सी ज़्यादा होगी. At least I won't be married off to a guy that I've never met, that I don't know, right? Another issue that Humsafar highlights, right, with the traditional path to marriage is the importance of women's financial independence. I talked about earlier how उस ideal के अंदर भी women's financial independence जो है it becomes very important, right? But हमारे ideals के अंदर भी, you know, औरतों को डर होता है बहुत सारी cases में, and precisely because the marriage is not working well, right? If the marriage is working well तो ये डर नहीं होता, but precisely because the marriage does not work well, women oftentimes have to worry not just about the fact कि शादी ठीक नहीं जा रही, they also have to worry about the fact कि अल्लाह ना करे अगर कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा. हम देखते हैं हमसफर के अंदर कि खिरत जो है उसको घर से निकाल दिया जाता है. वो बदतमीज अशर जिसको इतना बड़ा हीरो बनाया हुआ है, वो यू नो घर में एक सीन देखता है एंड उसको पट्टियां पढ़ाती हैं उसकी अम्मा और उसकी दोस्त सारा, और वो अपनी बेगम को बारिश के अंदर, पाकिस्तान में तो बारिश हो गई थी क्रिटिकल मौकों के ऊपर, तो बारिश के अंदर उसको घर से बाहर निकाल देता है. मतलब आप और बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामास इसी वजह से होते हैं. तो एक तो वो रियल फियर तो है भी, और फिर ये सब ड्रामे देख देख के इमेजिन फियर भी आप सोचें कितना ज्यादा होगा. बट द प्रॉब्लम इज रियल एंड यू नो वी सी इट अराउंड अस कि इवन एंड नॉट जस्ट यंग मैरिजेस बट इवन शादी के 20-30 साल बाद भी खवातीन को डर लगता है कि अब जो है हमारे बच्चों की भी शादियां हो चुकी हैं, वो अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, अब मेरे वालिदैन का भी इंतकाल हो चुका है, कल को अगर इस आदमी ने मुझे दरबदर कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी. And it's so interesting, you know, even if you think about in our own tradition as well, even though Islam places the financial responsibility on the husband, right? लेकिन अगर आप हमारे scholars वगैरह को पढ़ें तो they share so much gems of wisdom sometimes. मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह के बारे में बताया जाता है कि वो अपनी अहलिया को हर महीने काफी पैसे दिया करते थे, और लोगों ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं. तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में मैं तो उनका ख्याल रखता ही हूँ, लेकिन एंड दिस इज आई मीन आई एम पैराफ्रेजिंग, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से या इकोनॉमिक कंसर्न्स जब बंदे के सामने नहीं होती तो उसकी रूहानी तरक्की में आसानी होती है. In other words, for spiritually lifting yourself, if you don't have to worry about those, you know, my financial concerns, it helps you, right? Moving on, another major issue that, you know, people are increasingly looking towards this ideal of the love marriage is simply because of the issue of male violence in traditional marriages. And you know, जब आप देखते हैं, and when young girls, you know, they grow up and they see instances of abuse around themselves, you know, they see instances of abuse in their own homes, they see instances of abuse in, you know, अपनी चाचू खाला दोस्तों के घरानों में, they imagine and they think, and perhaps rightly so, कि अगर हम एक ऐसे आदमी से शादी करें जिससे हम, you know, शादी से पहले बहुत अच्छी तरह जानते हैं और हमारी बहुत दोस्ती और वो हमसे मोहब्बत करता है, हमसे मोहब्बत करते हैं, तो कम से कम ये तो नहीं होगा. And now it's a separate thing कि अगर आप, you know, issue of male violence को देखें वेस्ट के अंदर, you know, domestic violence वगैरह को देखें, तो those stats are not insignificant. मतलब it's not as if, you know, the love marriage solves that problem. लेकिन कम से कम एक उम्मीद तो होती है, और rightly so, right? एक उम्मीद तो आपको होती है ना कि यार
maybe things will turn out better. जब इतने सालों से इस तरह से this way of doing things has not finished this problem or alleviated this problem, then let's try something different. And that, I think, is another major driver to pushing people towards that ideal. Finally, the lack of romantic and sexual fulfillment. Traditional arranged marriages के अंदर ये एक तासुर पाया जाता है, and again it's based on experience, right? This is not just an imagination, कि the men don't know how to please women, and vice versa as well, but specifically that men don't know how to please women. And that encompasses a wide variety of domains, right? It encompasses everything from men not being sensitive enough to look after the woman's needs or pleasing the woman inside the bedroom, और वहां से लेके in the entire ambit of things, कि they're just not trained to be romantic, right? उनको पता ही नहीं है कि मतलब ये how do you be a man that your wife begins loving and begins to be intimate with. And यहाँ पे भी बदकिस्मती से आई फील कि एक मजहबी नावाकफियत, एक इस्लामिक ट्रेडिशन की रिच हेरिटेज से इग्नोरेंस लीड्स टू अ लॉट ऑफ दीज इश्यूज. क्योंकि खुद जाहिर अगर हम सीरत का मुताला करें तो उसमें इतने सारे वाक़यात हैं जो हम सबको पता है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को किस तरह खुश करते थे, उन्हें प्यारे प्यारे नामों से बुलाते थे, उनके साथ गेम्स खेलते थे, उन्हें बाहर लेके जाते थे. हमारे यहाँ ये वाक़यात जाने जाते हैं, बट इन प्रैक्टिस अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ टाइम्स, एंड बदकिस्मती ये है कि फॉर सम रीज़न इट्स द रिलीजियस पीपल who have deviated from that trajectory and who don't think about ehsasat and emotions, especially of the woman. And that's a tragedy. And I mean, like the woman's orgasm, इसके बारे में क्लासिकल स्कॉलर्स ने बहुत लिखा है, बहुत कुछ लिखा है. And you go to a website like Muslim Matters वगैरह, और आप वहां पे जाके पढ़ें articles which address these issues, and you will be stunned. You will be stunned reading what people like Ghazali, Imam Nawawi, etc. have written about these issues. But the basic point is a very commonsensical one. That basic point is कि भाई अल्लाह ताला ने ख्वाहिशात मर्द औरतों दोनों में रखी हैं, और उन ख्वाहिशात की तकमील के लिए शादी का इदारा बनाया है. The institution of marriage is to allow for the fulfillment of certain kinds of drives which Allah Ta'ala has put into you. And if that marriage is not fulfilling those desires, तो ये बहुत बड़ा मसला है. क्योंकि जब आपको शादी के रिश्ते में वो फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी, जब आपको बेडरूम के अंदर वो फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी, तो फिर आप वो घर के बाहर तलाश करेंगे, फिर आप वो बार्स में, क्लब्स में जाके तलाश करेंगे, और वो भी छोड़ दें, अब तो आप वो बाथरूम में जाके मोबाइल की स्क्रीन पे तलाश करेंगे. And this is true. I mean, pornography is such a huge issue, but no one's talking about it, and no one's talking about the factors that are pushing people towards that. And so a lot of the power of this ideal is simply because हर ख़वातीन चाहती है कि उसके लिए कोई राज हो, मतलब without the problematic aspects of Raj is शाहरुख खान in दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, but they want उनका भी हस्बैंड कोई मतलब टॉम क्रूज टाइप का हो, like charming etc. हमारे यहाँ तो मतलब मर्द अपनी फिगर के ऊपर ही काम नहीं करते. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू का इतना इस्तेमाल करते थे. ये इतनी सारी किताबें, एक मौलाना अब्दुल सत्तार की किताब है खुशगवार जिंदगी का आईना और समथिंग लाइक दैट, व्हिच इज जस्ट अबाउट द हॉली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, स्पेसिफिकली इन रिगार्ड्स टू लाइक फैमिली अफेयर्स, जिसमें वो सारी बातें बताते हैं कि वो खुशबू लगा के जाते थे. मतलब क्यों खुशबू लगा के जाते थे? थिंक अबाउट दोस थिंग, राइट? और मतलब मुंह को खुशगवार बना के जाते थे. वुड अवॉइड ईटिंग लाइक बदबूदार चीजें. आप सोचिए, मतलब ये क्या सिखाया जा रहा है यहाँ पे. थोड़ी सी जो है वो इमेजिनेशन भी चाहिए होती है सोर्सेस को पढ़ते वक्त. तो we need to think about these things. Now,
I want to conclude, right? Now that we've seen some of the issues with the traditional kind of, arranged marriages system, and we've also seen some of the issues with the love marriage system, what do we do? Because especially for, a lot of the audience who are very young, उनको मतलब, शादी तो करनी है, और अल्लाह ताला, सब लोगों के बहुत अच्छे जोड़ के रिश्ते फरमाए, और जिनकी शादियां हो चुकी हैं उनको उनकी शादी में एक दूसरे को, पार्टनर्स को एक दूसरे की आंखों की ठंडक बनाए. But what do we do, right? So in this last section, I just want to quickly share some brief points, and I also want to share some questions that remain unresolved and which we need to be thinking about. To begin with, it goes without saying, we need to train our men to have better akhlaq. हमें मर्दों की तरबियत की ज़रूरत है कि अच्छे शौहर कैसे बना जाता है. We need to have proper workshops वगैरह. आप सोचें ना कि हमें बचपन से बताया जाता है कि जी ज़कात किन लोगों को दी जानी चाहिए. ठीक है, इस्लामियात की किताबों में सिखाया जाता है ज़कात इन लोगों को देनी होती है. हमें नमाज, रोज़ा, ज़कात के मसाइल बताए जाते हैं. भाई आदाब माशरत क्यों नहीं सिखाए जा रहे? इस्लामिक एथिक्स को अगर आप पढ़ें, द ट्रेडिशन को, उसमें इतना ज़्यादा कॉर्पस है कि आदाब माशरत क्या होते हैं, एथिकल सेल्फ कल्टिवेशन क्या होती है. We need to be talking about those things. We need to be talking about how men can have better akhlaq, how they can be better husbands. And we need to be learning from the seerah, and we need to be putting the seerah in practice. And और वो कैसे होगा? ज़ाहिर है उसके बहुत सारे मैकेनिज़म्स हो सकते हैं. ज़ाहिर मेरे ख्याल में तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उलमा की है. मस्जिद का मिंबर इज़ द प्राइमरी फोकल पॉइंट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द मुस्लिम कौम. बट एट द सेम टाइम देयर आर अदर एवेन्यूज, राइट? जो खवातीन हैं जिन्होंने ये इश्यूज देखे हैं, दे शुड इंशाल्लाह, दे विल बी मदर्स वन डे. दे नीड टू रेज देयर बॉयज कि उनके अंदर ये चीजें हों. we need to talk about these things with each other. अपने हमसे जो थोड़े से बड़े और हमसे जो छोटे लोग हैं, उनसे हम ये बातें करें जिनकी अब शादियां होने वाली, कि देखो ऐसे 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 कर लो, ये टिप्स होती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. बिकॉज जब आप ये चीजें सिखाते नहीं है ना अच्छे तरीके से, when you don't talk about these things in a healthy manner, people will go to unhealthy sources. कितने सारे हमारे दोस्त हैं जिनकी शादियां होने वाली होती हैं और उन्हें कुछ नहीं पता होता कि शादी के बाद क्या करना है, और फिर वो गूगल पे जाते हैं क्योंकि उन्हें शर्म आती है किसी से पूछते वक्त, और जो उनके बड़े हैं उनको इतनी अक्ल नहीं है कि भाई इसको मतलब ये चीजें हम खुद बिठा के समझा दें, तो वो गूगल पे जाते हैं. और जब आप गूगल पे जाएंगे तो फिर आपको हर तरह की चीजें मिलेंगी, because these are sensitive issues. The fact that I'm saying कि we need to talk about them does not mean that I'm saying कि इनके बारे में किसी भी किस्म की गुफ्तगू ठीक हो जाएगी. अगर आप एक गैर संजीदा माहौल में दोस्तों के साथ बैठ के एक फजूल में टिटिलेशन के लिए इस किस्म की बातें करें, तो that's problematic, right? There needs to be certain kind of protocol, there needs to be certain kind of boundaries. मेरे ख्याल में मस्जिद आप गुफ्तगू इस अंदाज में करें कि आप लोगों को सब बातें समझा भी दें और आप बेशक मस्जिद के अंदर बैठे हुए हो, and that's possible, right? At the same time, we need to train our women to be better wives. एक लम्स रिलीजियस सोसाइटी के ऑर्गेनाइज किए हुए प्लेटफॉर्म से ये कहते वक्त बहुत डर लगता है कि आप जरा सा भी ये कह दें कि जी खवातीन को भी काम करने की ज़रूरत है, लेकिन आप ये मुझसे ना लें, आप सिर्फ ये देख लें कि और खवातीन क्या कह रही हैं इस मामले में. भाई शादी आसान काम नहीं है. It requires a lot of what can I say, courage, adaptation on the part of both people, but especially on the part of the woman, right? Obviously she leaves her household and it's the man's job to make that transition as easy for her as possible. But at the same time, the girl needs to be making a lot of effort as well. और बदकिस्मती से हमारे माशरे में जहाँ पे ये रिवाज तो मतलब है ही नहीं कि मर्दों को ट्रेनिंग दी जाए, अब वो खवातीन को भी नहीं दी जाती, और वो दी भी जाती है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक तरीके से. मतलब आप देखिए ना ड्रामों वगैरह में किस किस्म की जो है वो काउंसलिंग की जा रही होती है. मुझे याद है कुछ ऐसे पहले वो एक डेयरी मिल्क का ऐड आता था जिसमें वो लड़की की शादी होने वाली होती है, तो उसका जो भाई है वो ऐसी मस्तियां कर रहा होता है और उसकी जो बड़ी खवातीन होती है ना वो वहाँ बैठ के उसको समझा रही होती हैं कि बेटा देखो ससुराल में जाओ तो ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ये वो. और उसका भाई उसको छेड़ रहा होता है, फिर वो बड़े नाराज हो जाती है, फिर उसका भाई डेयरी मिल्क लेके आता है तो वो खुश हो जाती है. वो जो आइडियल था कि भाई आपके घर की बड़ी खवातीन आपको मतलब थोड़ी सी काउंसलिंग देती थी कि ससुराल में कैसे रहना है, वो भी अब मुझे लगता है बहुत कम हो चुका है, और अगर है भी तो इट्स नॉट वर्किंग. एंड सो वी नीड टू थिंक अबाउट कि भाई लड़कियों की भी
तरबियत करने की ज़रूरत है कि अच्छी बीवी कैसे बना जाता है, राइट? At the same time, we need to figure out as a collective, and especially we से मेरी मुराद है ये audience, क्योंकि मतलब you know, as people belonging to institutions like LUMS, you're the elite of this society, and so you have the time and the privilege to think about these issues. जाहिर है जो गरीब लोग हैं उन बेचारों को तो टाइम नहीं मिलता ना कि वो इन आइडियाज वगैरह के बारे में सोचे, वो मुआशरे के नॉर्म्स चेंज करने के बारे में सोचे. हमारे पास वो प्रिविलेजेस हैं, सो वी नीड टू थिंक अबाउट इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी. एंड व्हाट डू वी नीड टू थिंक अबाउट? वी नीड टू फिगर आउट व्हाट इट इज दैट वी आर डूइंग व्हेन वी आर ट्रेनिंग 25 सालों तक, जब हम लड़के और लड़कियों को बिल्कुल एक जैसी तरबियत देते हैं, एक जैसी तालीम देते हैं, एक जैसी तरबियत देते हैं, सब कुछ उनके होप्स, एक्सपेक्टेशंस, ड्रीम्स बिल्कुल एक जैसी हम देते हैं, और फिर हम तवक्को रखते हैं कि जैसे ही इसने निकाहनामा साइन किया, कबूल है, कबूल है, कबूल है, अब इनके रोल्स बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे. अब जो लड़का है वो यू नो वो कमाएगा, और जो लड़की है वो घर पे बैठ के खाना बनाएगी. मतलब आप देख रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन कितनी ज्यादा है एक सिस्टम के अंदर, कि आई मीन एंड अगेन मतलब इतनी दफा अपने आप को ना बहुत दफा क्लैरिफाई करना पड़ता है, अगर आप यू नो लाइक ऐसी जगहों पे बात कर रहे हो जो सेशंस रिकॉर्ड भी हो रहे हो, और जहाँ पे यू नो देयर इज ऑलवेज द चांस कि पीपल माइट मिसइंटरप्रेट व्हाट यू आर सेइंग. ज़ाहिर है मैं ये नहीं कह रहा कि जी आप मतलब ख़वातीन को पढ़ाएँ नहीं, क्या ज़रूरत है? घर में ही बिठाने तो क्या ज़रूरत है पढ़ाने की? ये नहीं कहा जा रहा, लेकिन कहा ये जा रहा है कि भाई इन कॉन्ट्रडिक्शंस को कॉन्ट्रडिक्शन समझें और सोचें इस मसले के ऊपर कि करना क्या है, यू नो व्हाट इट इज़ दैट वी आर ट्राइंग टू डू. सिमिलरली जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मसला है वो बहुत बड़ा मसला है, वो एक संगीन मसला है, एंड वी नीड टू थिंक अबाउट कि हम उसके लिए क्या सॉल्यूशन सोचना है, क्या सॉल्यूशन चाहते हैं. देखें, अगर हम ये कह रहे हैं कि जी एक डेंजर है कि वुमेन अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगी, दे माइट एंटर इनटू प्रॉब्लम्स. इसके दो तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं, एंड मोर, बट दो बड़ी तरह के. एक सॉल्यूशन ये जो मगरिब ने अपनाया, और वो क्या है कि भाई औरतों को भी वर्कफोर्स में शामिल करो. कुछ पता नहीं है मर्दों का, ये घटिया लोग हैं, जैसे कि हमें नजर आते हैं. हमसफर इज इन मेनी वेज हमसफर इज अ स्टोरी अबाउट घटिया मर्द, राइट? एंड द प्रॉब्लम्स दैट दे यू नो उनकी वजह से जो खवातीन की जिंदगी में होती हैं. इट्स ऑल्सो अबाउट घटिया औरतें का, यू नो लाइक एक दो खवातीन भी बहुत डैश किस्म की हैं, but in many ways, you know, it's about कि like मर्दों की dominance. I mean, the only reason that Khilad and Usher get married is because जो उनके अब्बू हैं, he wants to fulfill his like you know guilt. He wants to redeem that somehow. और वो जबरदस्ती जो है ना वो उनकी शादी करा देता है. But solution क्या है? तो मगरिब ने ये solution दिया कि जी औरतों को भी workforce में शामिल करो और उनको भी financially independent कर दो. लेकिन फिर उस सॉल्यूशन के जो मसाइल हैं वो हमारे सामने हैं, एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट सम ऑफ देम, राइट? द प्रेशर ऑन द फैमिली, द इंक्रीजिंग रीच ऑफ कैपिटल, द इंक्रीजिंग रीच ऑफ द मार्केट इनटू द मोस्ट प्राइवेट डोमेन्स ऑफ द फैमिली. सो इज दैट द सॉल्यूशन, और इज द सॉल्यूशन कि हम मर्दों को ऐसा ट्रेन करें कि भाई आप इस किस्म की मतलब आप सोच कैसे सकते हैं कि यू नो आप यू कैन जस्ट डू लाइक यू नो आप ऐसे मजे से मतलब यू नो किसी को घर से बाहर निकाल दें, काइंड ऑफ लाइक अशर. And obviously we don't need to look far for examples, right? मतलब खुद अल्लाह के नबी वसल्लम की ज़िंदगी में इतना बड़ा वाक़या है कि you know and keep the parallel of the Khilad and Ashar incident in mind कि उनकी अहलिया पे भी तोहमत लगती है. How does he react, right? And why are we not talking about those issues? So we need to think about, you know, do we like is the solution कि हम ख़वातीन को भी सबको वर्कफोर्स का हिस्सा बना दें, या इज द सॉल्यूशन कि हम मर्दों की बेहतर ट्रेनिंग करें? इज द सॉल्यूशन कि हम कम्युनिटीज की बेहतर ट्रेनिंग करें? क्योंकि एक आप सोचिए ना, आज से कई साल पहले एक ट्रेडिशनल माशरे में ये मुमकिन नहीं होता कि एक मर्द को एक दिन अचानक से गुस्सा आया और उसने जो है औरत को घर से निकाल दिया. उसके घर वाले पहले उस मर्द को निकाल देंगे कि मतलब ये क्या मजाक हो रहा है भाई, मतलब ये तमीज वमीज तुम्हें हमने ये सिखाया था. तो शरीफ घरानों में ऐसी चीजें मुमकिन नहीं होती, ठीक है? एंड वी नीड टू थिंक अबाउट, यू नो, वेयर हैव दोस कम्युनिटीज गॉन, राइट? or perhaps is the solution कि you know we need to like train women to a certain extent ताकि अल्लाह ना करे अगर things खराब हो जाएं, and things don't need just things सिर्फ इसलिए खराब नहीं होती क्योंकि आपकी divorce हो जाती है. मतलब आपका शौहर मर सकता है भाई, आपका you know he can become disabled or whatever, or he might not be earning that well, उसके हो सकते हैं 10,000 और तरह के मसाइल हो. तो we need to think about those things, right? And finally just a couple of tips, you know, थोड़ी सी एक दो नसीहतें for the young people here कि there is no doubt कि before marriage there need to be certain important conversations between the prospective husband and wife, you
you need to talk about what are your dreams, desires, goals. What are you looking for in a good wife? What are you looking for in a good husband? How will we, हम इस रिश्ते को कैसे निभाएंगे? How will we go about these things? Where will we live, etc. Like कुछ broad बातें होने की जरूरत है. What are the things that we will never try and do, etc., etc., जो basic boundaries हैं. So those conversations need to be there, but at the same time be very careful. Guys, especially आज के दौर में जहाँ पे WhatsApp ने चीजें इतनी आसान कर दी हैं, be very careful of emotional and physical intimacy before marriage. हमने उसके disadvantages पहले ही डिस्कस कर लिए हैं. दीनी तौर पे भी अगर आप, I mean, the problem is कि देखिए शरीयत हमें ब्रॉड गाइडलाइंस देती है. एग्जैक्टली कौन सी गाइडलाइन मेरी जिंदगी में कहाँ पे अप्लाई होगी और एग्जैक्टली कहाँ पे लाइन जो है वो मुझे ड्रॉ करनी है, अल्टीमेटली ये आपका दिल ही आपको बता सकता है. सो जस्ट बी जस्ट वेरी केयरफुल. एंड देयर आर सम लाइक ब्रॉड इंडिकेटर्स हैं जो कि आपके मतलब अकल में भी आ जाने चाहिए और उसको दिल को समझा देना चाहिए कि भाई अगर आप मतलब शादी से पहले जो है रात रात बात कर रहे हैं, ठीक है, और लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं और हर थोड़ी देर बाद मैसेजेस आ रहे हैं, समथिंग इज प्रोबेबली नॉट गोइंग राइट, फ्रॉम अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव, राइट. इमोशनल इंटीमेसी बिफोर मैरिज को अच्छा नहीं समझा जाता मर्द औरतों के दरमियान, तो we need to restrict that, right? And so we need to kind of monitor ourselves. Similarly, avoid physical intimacy. And physical intimacy भी again can be a vague term, but उसकी जो एक आप, I mean if I can give you my basic definitions, एक तो एक contact कोई नहीं होना चाहिए. आप सोचेंगे मतलब social distancing is important. Avoid physical contact and also avoid being alone. खलवा जिसे हम कहते हैं, avoid being alone with two unrelated boy or a girl should not be alone in any setting, and that includes being in a car, I think. So with some of those I want to end, but my ending I hope is another beginning and it initiates a conversation, some of which we can have today, but inshallah we can also keep thinking about this in the future as well, because these are important issues. And as a final statement, we need to remember कि ultimately आप कोई भी path to marriage choose करें, relationships जो चलती हैं ना वो खुदा की रहमत से चलती हैं. हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं, we can tick all the check marks, the other person can also tick all the check marks, but unless उसमें खुदा की रहमत शामिल हाल नहीं है, things will not work. So even as we are doing all of these things and we are thinking about these issues and we are trying to become the best possible person that we can, we also need to be constantly asking Allah subhanahu wa ta'ala for help. ये conditions तो करनी ही करनी है, लेकिन ये करने के बाद हमें arrogant नहीं हो जाना कि यार मैंने तो सब चीजें कर ली हैं तो मेरी तो शादी जो है ना एकदम तबाही की धमकी होनी चाहिए. नहीं, we need to be humble and we need to ask Allah ta'ala कि he bless our relationships with love, with care. He make us, he give us partners who are a coolness for our eyes, qurrata ayun. So jazakallah khair. That is it from my side. Jazakallah Hassan bhai, and now we'll have a short Q&A session. So anyone who has any questions can raise their hands, or you can type your questions in the chat box as well. Assalamu alaikum. So first of all, brilliant session, very good. I like your arguments. बहुत अच्छा आपने सारा present किया. So I had one question. So regarding the arranged marriage, love marriage. So I was lagging out थोड़ी देर दरमियान में. So I don't know if you've talked about this. So एक और argument जो हमारे पाकिस्तान के scholars उलमा करते हैं, present करते हैं, like Dr. Asar Ahmed, Mufti Tariq Masood, is they talk about early marriages. Early as in not early as in टीनेजर्स, मतलब कि यूनिवर्सिटी लाइफ के दरमियान कहते हैं 18-19 का बच्चा हो जाए, 20 का हो जाए, कहते हैं जल्दी शादी करो. दैट्स द आर्गुमेंट्स आई हैव हर्ड देम प्रेजेंट कि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि फाइनेंशियल डिपेंडेंस पहले है, इट्स इंपॉर्टेंट कि बच्चों को फितने से बचाएं. बिकॉज दे से फॉर एग्जांपल कि जो आजकल की फैमिलीज के अंदर मसले हैं वो इसलिए हैं बिकॉज द वाइफ आती है घर में, उसको पेरेंट्स की कदर नहीं होती, और वो कदर कब होगी जब वो उसके पेरेंट्स घर में लेके आएंगे इंस्टेड ऑफ बंदा लेके आए. सो लाइक इसमें आर्गुमेंट्स बैक एंड फोर्थ. सो व्हाट डू यू थिंक कि हमारे जैसे लोगों के लिए इज इट फीजिबल टू थिंक कि आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना हो
बंदे के पास एंड यू आर लुकिंग फॉर अर्ली मैरिजेस और समथिंग लाइक दैट? यही बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत अहम सवाल है। जाहिर है मैं तो मतलब बच्चा ही हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा फिलोसफर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो अपना काम समझता हूँ वो ये कि एज अ स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, आई फील कि मेरी जॉब ये है कि मैं इश्यूज जो है ना, जो स्टेक्स हैं उनको क्लैरिफाई कर दूं, और फिर उन इश्यूज में जो रेजोल्यूशन उनका एग्जैक्टली कैसे आएगा, दैट आई थिंक शुड बी लेफ्ट अप टू द people themselves and people more knowledgeable and intelligent meet some of the people that you've mentioned. पर ऑब्वियसली इसमें जो प्रैक्टिकल किस्म के मसाइल हैं उनको सोचना पड़ेगा ना। मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी के दौर में ही शादी कर देंगे तो मतलब लड़का जो है वो मतलब पहले 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 ज़माने में कहा जाता था कि भाई लड़के जो इधर-उधर बहुत फिरते-विरते हैं ना, तो वो उनकी शादी कर दो तो वो शरीफ हो जाते हैं। वो एक गाना भी बहुत मशहूर था, आप तो गाने नहीं सुनते, लेकिन वो एक बहुत पुराना बहुत मशहूर गाना था, पता नहीं तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, इस तरह से कुछ था। उसमें वो कहते हैं इसकी जल्दी से शादी कर दो तो ये वो हो जाएगा क्योंकि ये बिगड़ा जा रहा है, रात को देर-देर से घर आए एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देयर इज दिस नोशन कि भाई जब शादी हो जाती है ना तो लड़के के सर पे पड़ती है तो वो लाइक सीरियस हो जाता है, काम-शाम करता है। तो आई एम जस्ट वंडरिंग अगर हम ये नॉर्मलाइज़ कर दें कि शादी के बाद भी लड़के के अम्मा-अब्बा उसे सपोर्ट कर रहे हैं, ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी में हम में से कितने लोग हैं जो अपने पैरों पे खड़े होते हैं, तो वो लड़के बड़े कब होंगे? और मतलब हाउ विल दोज़ थिंग्स वर्क? अब इसमें द प्रॉब्लम इज़ कि देयर इज़ अ हिस्टोरिकल क्वेश्चन एज़ वेल। हिस्टोरिकल क्वेश्चन है कि ये पहले मुसलमान कैसे करते थे? क्योंकि अगर आप अपनी तारीख पढ़ें, मतलब नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री पढ़ें, नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अ लॉट ऑफ आवर कल्चर एटसेट्रा पाकिस्तानियों का, स्पेशली मुहाजिरों का, but also just the broader culture of Pakistan has a very huge stamp of the North Indian Ashrafia Muslim community culture on it. Just because those were the places where the Pakistan movement was fought, etc., etc. तो अगर आप वो पढ़ें तो people like I think Ghalib and Hali etc. इनकी तो 13 साल में शादी कर दी जाती थी, ठीक है। तो हाली तो जो है वो अल्ताफ हुसैन हाली, वो तो घर से भाग भी गए थे, उनकी जल्दी शादी कर दी गई थी इस वजह से। उन्हें वो शायर बनना था तो दिल्ली आ गए थे। तो मुझे नहीं पता कि पहले मुसलमान हाउ डिड दे यूज्ड टू पुल दीस थिंग्स ऑफ, कि जब लड़के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं, उनकी शादियां, तो तब क्या होता था। सो आई थिंक दिस इज अ गुड क्वेश्चन, एंड वी वन शुड थिंक अबाउट these things from a historical perspective and from a practical perspective, which you said. Okay, so we have a question in the chat as well, and says that would you criticize the tradition of the woman moving into the sasurals instead of a separate living space for the husband and wife? देखिए एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को क्रिटिसाइज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मतलब इस्लाम, अच्छा एक 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 मसला ये भी हुआ है। आप लोगों को लगेगा कि मैं सवाल का जवाब नहीं देता, घुमा देता हूँ, बट दैट आई मीन जाहिर है मतलब काम ही यही है, पीएचडी कर रहा हूँ, तो आपको क्या ख्याल है जवाब दूंगा? नहीं। एक मसला ये हुआ है कि हम ना इस्लाम के बारे में बहुत एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में सोचने लग गए हैं। उससे मेरी मुराद ये है कि हम लोग इस तरह की चीजें सोचते हैं कि जी इस्लाम न्यूक्लियर फैमिली को पसंद करते हैं या जॉइंट फैमिली को, एंड वी निग्लेक्ट द फैक्ट कि भाई इस्लाम जो है वो हर माशरे में उस हर माशरे में अप्लाई होता है। वो ऐसा नहीं है कि वो एक कोई आइडियल्स हो पहले, और जिस माशरे के लोग मुसलमान हो तो वो उस आइडियल को देख के इम्प्लीमेंट कर ले, नहीं। अगर आप इस्लामी तारीख पढ़ें तो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ इंडिजनाइजेशन। जब जैसे जैसे इस्लाम फैला है अरबों से निकल के, उसने लोकल लोकल कस्टम्स वगैरह को लिया है, उसको अडॉप्ट किया है, चेंज किया है, बहुत कुछ किया है। एंड despite the simplicity of my title, it was deceptively simple. There is no one path to marriage in Islam, just like there's no one path to marriage in modernity. मतलब there's a huge diversity. आप सोचे ना, ये कैसे मुमकिन है कि 21वीं सदी कराची और 13वीं सदी बगदाद और 7वीं सदी मदीना और 11वीं सदी टर्की, उर्दू सब लोग देख रहे हैं, और साउथ ईस्ट एशिया, इतने 1400 सालों की इतने डाइवर्स सोसाइटीज के ऊपर एक तरह के आइडियल्स तो नहीं अप्लाई होंगे ना, एक तरह का तस्वुर तो नहीं कहा जा सकता कि लड़की को जो है ना लड़के के साथ अलग घर में होना चाहिए या लड़की को अपने ससुराल वालों के साथ होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हर हर माशरे में सिचुएशन इज डिफरेंट। सो आई थिंक ये सवाल इस तरह से सोचना कि इस्लाम क्या चाहता है,
it's not a good way of asking the question. But at the same time सवाल वैसे कि था नहीं, सवाल ये था कि would you criticize that tradition? तो मेरा उसका जवाब मैं ये देने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए मजहब के तौर पे तो मेरे ख्याल में हम एब्स्ट्रैक्टली कुछ नहीं कह सकते कि जी मजहब इस चीज को हमेशा पसंद करेगा, इस चीज को नहीं पसंद करेगा. लेकिन कुछ इश्यूज जो हैं वो हम उनके बारे में सोच सकते हैं which are common place. उनमें एक बहुत बड़ा इशू ये है कि भाई अगर लड़का लड़की शादी के बाद अकेले मूव कर रहे हैं तो लड़के के जो अम्मा अब्बा हैं और फिर लड़की के भी अम्मा अब्बा इवेंचुअली उनका कौन ख्याल रखेगा. मतलब हम बूढ़ों के साथ क्या सलूक करना चाहते हैं और हम अपने घरों के साथ क्या सलूक करना चाहते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ क्या सलूक करना चाहते हैं, राइट. अगर आप देखें कि फिर वेस्ट में क्या हुआ है अगेन, तो वेस्ट का क्या सोल्यूशन है, लड़का लड़की अपना इंडिपेंडेंट गए और बूढ़े माँ बाप को कौन दिखेगा. अगेन दिस इज नॉट अ स्टीरियोटाइप, मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग बूढ़े माँ बाप का खुद से ख्याल रखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरा क्या सोल्यूशन है, ओल्ड होम्स. आप मार्केट के हवाले कर दें. आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है अम्मा अब्बा को बाथरूम लेके जाना, आप थक जाते हैं, आप जाहिर है इतना मतलब ख्वारों की तरह काम करते हैं, आप थक जाते हैं, आप ओल्ड होम में शामिल करा दें. the market begins to take over the functions of the family. तो इन इश्यूज के बारे में सोचना चाहिए कि भाई अगर आप इस चीजों को प्रमोट करेंगे तो फैमिली सिस्टम का क्या होगा. जब आप बूढ़े हो जाएंगे और आपके बेटा जो है वो भी बेटी के साथ चला गया और आपकी बेटी भी शादी होकर अलग अलग मूव हो गई, तो लाइक उस वक्त क्या होगा. Hassan has his hand raised. He can unmute himself. So first of all, I would like to thank you for an amazing talk. लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि वेस्ट में शादी के बाद अगर लड़की वर्कफोर्स ज्वाइन करे तो उसके अपने मसले, और अगर ना करे तो उसके अपने मसले, तो फिर बंदा जाए तो फिर जाए कहाँ, क्या करे. ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे. जिंदगी कॉम्प्लेक्स है ना, ये मसला है. अच्छा, just by the way, Hassan, just 1 second. There is a feedback form in the chat. आप लोगों से गुजारिश है कि उसको प्लीज फिल कर लें, क्योंकि उससे हमें बहुत मदद होती है. मतलब मुझे पर्सनली बहुत मदद होती है कि जाहिर है बहुत सारे कमेंट्स वगैरह होंगे जो आप लोग यहाँ पे नहीं कह पा रहे हो. मिसाल के तौर पे ये कि हसन आपका जो है ना मतलब बैकग्राउंड बहुत बोरिंग सा है, या मतलब आप कुछ अपनी शक्ल पे काम कर लें, कुछ भी बहुत सारी ऐसी बातें होंगी कि आपकी टॉक में ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, कुछ भी हो, आप लोग प्लीज फीडबैक फॉर्म के अंदर फिल कर दें. उससे मुझे बहुत मदद मिलती है और LRS को बहुत मदद मिलती है इन थिंकिंग अबाउट व्हाट यू गाइस वांट टू सी. तो प्लीज जस्ट टेक अ मिनट एंड फिल दैट. तो हसन इसमें सोचना पड़ेगा ना कि जैसे मैंने कहा कि मतलब different there are different points to consider in every domain. And अच्छा, फिर इसमें ये कि इसमें एक पर्सनल डिजायर का भी बहुत बड़ा एलिमेंट है, इन द सेंस कि बहुत सारी खवातीन बहुत एम्बिशियस होती हैं और उन्होंने सोचा हुआ होता है कि भाई मैंने यूनिलीवर की CEO बन के ही रहना है और ये मेरी जिंदगी का मकसद है, ठीक है. और खवातीन होंगी who don't have those desires. वो चाहती हैं कि हम सेटल हो जाएं और हमारी फैमिली अच्छी हो और मैं अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करूं जैसे मुझे मेरी वालदा ने तरबियत की. तो एक वो डोमेन भी है. एंड देन एवरी फैमिली सिचुएशन इज डिफरेंट, राइट. कुछ ऐसी फैमिली सिचुएशन होंगी जहाँ पे आपके दादा दादी नाना नानी आपके साथ रहते हैं और आपके बहुत आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और बड़ी अच्छी सिचुएशन है. तो दे माइट बी हैप्पी कि यार चलो जो लड़की है वो कुछ घंटे काम कर लेगी, हम उसका बच्चे का ख्याल कर लेंगे. लेकिन अगर मियाँ बीवी लेट से कहीं दुबई के किसी फ्लैट में रहते हैं या मेरी तरह अमेरिका के किसी फ्लैट में रहते हैं और उनके मतलब उनका भी जो है बच्चा हुआ है, तो फिर obviously those solutions are not there. So but there are other solutions there are daycare etc etc. So कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट मेरे ख्याल में नहीं देनी चाहिए कि भाई इस्लाम ने ये कह दिया है या ये कि नहीं ऐसे ही होगा क्योंकि हमारे घर में ऐसे ही होता है. इस्लाम एक कुछ ब्रॉड बातें हमें बता देता है, बट उसके बाद there is a lot of room for individual kind of circumstances. So that's kind of all I can say. I mean, there's no easy solution to the problem. Okay, so there's an other question in the chat,
and he says that my wife is from outside Pakistan and she's not familiar with the joint family system. What is your opinion when she asks me to leave my family or buy a separate house close to them? I can't. It's very difficult to give an opinion, I think, in the abstract sense again, unless ke like, you know, acha, is pe a tangent on technology, and this is important because हम एक खास मीडियम के थ्रू गुफ्तगू कर रहे हैं, and it's important to know some of the problematics associated with the medium itself. इंटरनेट के आने के जरिए से एक चीज पॉसिबल हुई है, जूम के आने से वो चीज बहुत ज्यादा पॉसिबल हो गई है, विच इज फेसलेस कम्युनिकेशन, कि आप एक दूसरे के सामने नहीं होते और आप एक दूसरे से गुफ्तगू कर सकते हो, आप एक दूसरे से मसाइल पूछ सकते हैं. प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ये मुमकिन नहीं था. इन मेनी वेज ये मुमकिन नहीं था कि आप एक बयान दे दें और वो बयान जो है वो कहीं पे भी जा सकते हैं दुनिया भर में और कोई भी उसको सुन सकता है. इंटरनेट के आने के बाद there is an issue of audience, right? The audience has disappeared because in a situation where potentially every single human being can be the audience, hypothetically speaking, ये लिंक जहां जहां पे भी है वो इसको अटेंड कर सकता है. नॉन मुस्लिम्स, मुस्लिम्स, यंग मुस्लिम्स, गरीब, लम्स के एलीट बच्चे, से लेके मतलब लम्स के नॉन एलीट बच्चों से लेके मतलब कहीं के भी लाइक रूरल, कोई डिवीजन नहीं रहती. एनीवन कैन जॉइन. ये चीज पहले पॉसिबल नहीं थी. मतलब पहले आप एक आलिम के पास जाते थे या वो एक आलिम बयान दे रहा था तो उसके सामने लोग होते थे. द ऑडियंस वाज काइंड ऑफ डिफाइंड, राइट? एंड इवन व्हेन यू आस्क समवन अ क्वेश्चन, तो वो एक स्पेसिफिक इंटरेक्शन थी. तो ही कुड लाइक और शी कुड आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस कि अच्छा तुम्हारी सिचुएशन में ये कैसा है, ये कैसे है, ये कैसे है. अब आई थिंक एक डेंजर इंटरनेट का ये हुआ है कि वो बाउंड्रीज चली गई हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट कम्युनिकेशन हैज बिकम पॉसिबल, व्हिच इज व्हाई इंक्रीजिंगली आई फील कि हम इस्लाम के बारे में एब्स्ट्रैक्ट तरीकों से बात करते हैं कि जी इस्लाम ये कहता है, इस्लाम वो कहता है, एज इफ मतलब इस्लाम कोई एब्स्ट्रैक्ट सेट ऑफ आइडियल्स हो. सो I recognize my limitations. I recognize my limitations in the sense कि बहुत specific advice personal level पे लोगों को जहाँ पे I feel I can give comfortably वो मैं दे देता हूँ. इस केस में I don't think I have enough data to kind of give any advice which would be a good nasiha. Okay, so one more question. Do you think the issue is women working on people or people having unrealistic expectations from women? I think the issue is not women working, but people not prioritizing the needs or aspirations of women beyond the household. What is the question again? Come again? I'll repeat. Do you think the issue is women working or people having unrealistic expectations from women? I think the issue is not women working, but people not prioritizing the needs or aspirations of women beyond the household. Bilkul. I mean, I think that's true. And this goes back to जो मैंने कहा था ना कि we need to think about कि हम मतलब ये जो लोग हैं, मैं इन लोगों से ही सवाल करता हूँ ना, जो लोग ये समझते हैं कि जी औरत को घर के बाहर कुछ भी नहीं करना चाहिए, तो भाई फिर आप 25 सालों से क्या कर रहे थे? मतलब आप 25 सालों से उसको बता रहे हैं कि बेटा स्कूल जाओ, फर्स्ट आओ. फर्स्ट भी आने जाहिर है, देसी अम्मा बहना तो मतलब बचपन से ही बच्चों को फर्स्ट आने हैं, हर क्लास में फर्स्ट आओ. फिर स्कूल खत्म हो गया, बहुत अच्छे कॉलेज में जाओ, फिर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ. जिस लड़की को आप ये तालीम दे रहे हैं और ये तरबियत दे रहे हैं, उस बेचारी को आप अचानक से कहते हैं कि नहीं अब तुम्हें घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाना. मतलब ये एक स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होगा ना माशरे में. या तो आप थोड़ा सा गाइड करें ना, मतलब पहले से ही थोड़ी सी समझाएं कि भाई देखें बेटा ये चीजें भी अहम है, तालीम इंपॉर्टेंट है, दीन का फरीज़ा है वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन एट द सेम टाइम ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं और इनको भी साथ लेके चलना है. ये नहीं हो रहा बदकिस्मती से माशरे में. या तो वो फैमिलीज हैं जो कि कहती हैं कि नहीं बेटा मतलब घर के अंदर ही रहना है और कुछ भी नहीं करना है, और एग्जैक्टली अनरियल एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल होती हैं कि अगर अच्छा बेटा अगर काम करना है ना तो हमें नहीं पता, ठीक है तुम नौकरी कर लो, लेकिन ये कि मुझे सुबह नाश्ता भी जो है ना वो तुम्हें 5 लोगों का टेबल पे रख के जाना है, और तुम्हें दोपहर का खाना भी जो है ना टेबल पे सब लोगों का ठीक 2 बजे लगा देना है, और फिर तुम्हें रात के 8 बजे भी जो है ना 10 लोगों का खाना लगा देना है. और हम तो तंदूर की रोटी नहीं खाते, हम तो घर की रोटी खाते हैं, इसलिए हमें तो रोजाना ताज़ा रोटी चाहिए, और हम ज्यादा पुराने आटे की रोटी नहीं खाते बेटा, इसलिए ना बस आटा जो है वो 1-2 दिन पहले ही गूंदा हुआ होना चाहिए, और चावल तो हमारे यहाँ एक ही दफा बनते हैं. तो जाहिर है अगर आप इस किस्म की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं खवातीन के साथ, तो मतलब ये मसला होगा ऑब्वियसली.
You know, we need to think about our expectations. You know, women also need to think about how they can balance, you know, these two things. But I completely agree that there is an issue of unreal expectations. Okay, so one more question from the chat. Okay. Okay, so one more question from the chat. My parents want me to get married and they selected the guy for me, and they don't think I'm mature enough to choose myself, and I'm denying their choice because of my own reasons, and they don't think they are valid. इसमें सवाल क्या है? आपका opinion? ये एक सिचुएशन है, मतलब बहुत मुश्किल सी. I can only pray कि you know things get better. ये कहना बहुत मुश्किल है. मतलब इस तरह के फोरम पे जिसके अंदर जाहिर है मैं मतलब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं है, और मतलब ये आई थिंक बहुत मुश्किल है ये कहना, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन दी हुई है कि यू नो क्या करना चाहिए. जो जनरल आई मीन सम जनरल एडवाइस जस्ट फ्रॉम लाइक एक्सपीरियंस जो मैं कह सकता हूँ वो ये है कि इट हेल्प्स टू think creatively, and you know sometimes that doesn't work either, but sometimes it works. And by think creatively I mean कि भाई अगर आपके कोई ऐसे इशूज हैं जिनमें आपको लगता है आपके वालिदैन स्टबर्न हो रहे हैं, थिंक अबाउट कि आपके वालिदैन के कोई ऐसे दोस्त हैं, अगर आपके जैसे अब्बू वालिद हो रहे हैं तो कोई आपके वालिद के दोस्त ऐसे हैं जो कि उनकी वो बात समझते हो, आपकी उनसे बड़ी अच्छी चिलिंग हो, कोई आपके चाचू फुप्पा खालू वगैरह कोई इस किस्म की कोई फिगर है खानदान में कि उनके आगे आप अपना मसला बयान करें, और यू नो वो उनसे रिक्वेस्ट करें कि मतलब आप थोड़ी सी वो करें, या फिर कोई मजहबी स्कॉलर हैं जो आपके वाले साहब बहुत सुनते हैं, हो सकता है किसी के वाले साहब डॉक्टर साहब को बहुत सुनते हो, ठीक है, और वो बताते रहते हैं कि बेटा तुम लोग ये नहीं कर रहे, तो आप उनको कोई डॉक्टर सालम की वीडियो दिखा दें कि देखिए अबू जी ये वो कह रहे हैं, यू नो. तो आई मीन इसके बियॉन्ड कुछ कहना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है. So Kinan Amir has his or her hands raised. Can you open your mic and speak? हाँ, मेरी बस एक सजेशन थी कि जो हसन ने पहले दूसरा वाला हसन था उसने सवाल किया था कि ना उधर के रहे ना इधर के रहे, तो मेरी सजेशन ये थी कि मेरे ख्याल से इस पॉइंट पे आके स्टेट या एनजीओज या इवन सोसाइटीज एज अ होल बहुत ज़्यादा काम कर सकती हैं कि जैसे एक ऑप्शन अवेलेबल होना भी बहुत अच्छी बात हो जाती है, तो उसके ऊपर काम इस सेंस में किया जा सकता है. मतलब कि या तो स्टेट एनजीओज को स्पॉन्सर कर ले और एनजीओज मतलब उन जिन औरतों की डाइवोर्स हो जाती है, जिनके हस्बैंड मर जाते हैं, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर दें या ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें जिसकी वजह से वो अपनी लाइवलीहुड चला सकें, और सोसाइटी आपकी इतनी एक्सेप्टिंग हो कि यार ठीक है सही है हो गया बट लेट्स मूव ऑन, और उनको सपोर्ट करें. तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, बट इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली सोसाइटी के चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है. और कौन के नाम अच्छा, और दूसरा मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाहूँगा, जो पिछला सवाल था व्हाट शुड आई डू. अभी रिसेंटली मेरे से भी किसी एक मतलब कोई बंदा आया और उसने ये कहा मुझे, तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा इसके बारे में, तो मुझे एक आयत मिली जो कि सूरह निसा की आयत नंबर 19 है, और उसकी ट्रांसलेशन मैं पढ़ देता हूँ कि ओ बिलीवर्स इट इज नॉट परमिसिबल फॉर यू टू इनहेरिट वुमेन अगेंस्ट देयर विल. ये उसकी पहले आयत का पार्ट है. तो आई थिंक इट्स मतलब ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, बट इस्लाम के अंदर अगर हम इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में रखें, और ये सूरह निसा ऐसी सूरत है जिसके अंदर बहुत सारी कमांडमेंट्स हैं अल्लाह ताला की, तो बात बनती नहीं है, मतलब कि फोर्स इस्लाम के अंदर फोर्स नहीं किया जा सकता. तो दिस वाज अनदर पॉइंट जो कि मैंने उससे बताया, और फिर उसने ऑब्वियसली थ्रू डायलॉग रिजॉल्व कर ली सिचुएशन. तो ये मैं एक पॉइंट रेज करना चाहता था. बस ये दही Just a quick thought on the issue of the state. ये किनान की बात अपनी जगह बहुत बजा है कि यू नो इदारे अगर ऐसे हों तो उससे ख़वातीन को मदद होगी, अग्रीड.
द क्वेश्चन इज कि रियासत खुद क्या चीज़ है और रियासत की क्या जिम्मेदारियां और कौन सी जिम्मेदारियां हम रियासत को देना चाहते हैं और कौन सी जिम्मेदारियां हम कम्युनिटी को देना चाहते हैं. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई मीन ये बहुत, ऑल आई वांट टू से इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू बिकॉज जो मॉडर्न स्टेट है, जैसे मैंने कहा, इट intrudes into the private domains of people's lives in a way that no other pre-modern state did. और आप इसकी, just to give an example from लिपासे, जो मैंने सोचा था वाक्य का जिक्र करूंगा, but it was not directly related to the topic, so I kind of avoided it, but I think now it's relevant. In one scene, जो लड़की होती है, जो मैरी है, you know, जिसकी 3 शादी हो चुकी है, उसकी जो पहली शादी से जो लड़की होती है, लूसी, she is a teenager now. She is not happy with the fact कि उसकी अम्मा एक चौथे रिलेशनशिप में है, because she fears कि ये चौथा बंदा भी उनको छोड़ के चला जाएगा. और वो क्या करती है, एक पॉइंट पे गुस्से में वो घर से चली जाती है एक दूसरे दोस्त के घर और वापस आने से मना कर देती है. तो जो मैरी है उसको पता चलता है और वो बहुत गुस्सा होती है. वो कहती है कि अरे क्या ऐसे कैसे वापस नहीं आएगी, मैं उसको जाके जबरदस्ती बोलूंगी कि वो वापस आए. तो उसका एक दोस्त कहते हैं देखो वो तो तुम्हारी बात नहीं मानेगी. कहती है अच्छा मैं पुलिस को बोल दूंगी. तो उसका जो दोस्त होता है वो कहता है तो तुम रोजाना पुलिस को बोलोगी. In other words, we see here the power of the modern state to आप सोचें, मतलब किसी ट्रेडिशनल माशरे में ये पॉसिबल नहीं है कि आप, मतलब बच्चे जो है ना वो किसी और जगह में चले जाएं, किसी और घर वाले में चले जाएं और वहां पे जाके बोलने कि जी हम घर वापस नहीं आ रहे. और जिस घर में होंगे वो घर वाले ही बोलेंगे कि बेटा ठीक है आप आए, लेकिन हम आए बात करते हैं आपके वालिदैन से, ऐसा क्या इशू हो गया है. पर यहाँ पे द पावर ऑफ द स्टेट, but at the same time we see the inability of the state to provide a long term coherent solution. Similarly, इस पे बहुत सारे लोगों ने ना बहुत कुछ लिखा है. मतलब बहुत सारे अच्छे एसेज वगैरह हैं कि मॉडर्न स्टेट का इश्यूज क्रिएट करके सॉल्व प्रॉब्लम्स. मिसाल के तौर पे हम समझते हैं कि जी एधी होम है, यतीम खाने हैं, वो बड़ी अच्छी चीज़ है और ज़ाहिर है अच्छी चीज़ है, बहुत नेक काम कर रहे हैं. सवाल ये है कि इतने सारे बच्चे, why are they being abandoned in the first place? Like a lot of the people, a lot of children that end up in, you know, orphans are abandoned children, right? So the problem is कि वो इतने सारे abandoned बच्चे हो क्यों रहे हैं? You know, why are you know these kinds of wedlocks happening, right? And there are lots of criticism. अगर आप सिर्फ academic literature पढ़ें on the issue of philanthropy, right? On the issues associated with philanthropy, there are so many arguments. पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये दे चुके हैं ये arguments. डॉक्टर वहाब सूरी in the philosophy, head of the philosophy department कराची यूनिवर्सिटी वगैरह, उन्होंने इस बारे में lectures वगैरह दिए हैं कि philanthropy in a way, you know, dulls the brutal side of the state. तो जो लोग capital के system में चल नहीं पाते, उनको बजाय इसकी कि कम्युनिटी उनकी जिम्मेदारी ले, वो जिम्मेदारी एक तरह से एनजीओज वगैरह की तरफ शिफ्ट हो जाती है. तो जाहिर है हम लोग कितना सुनते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर एटसेट्रा में बेवाओं के लिए जो है वो यू नो पेंशन्स मुकर्रर थी. इवन लेट 19th सेंचुरी के अंदर जो अर्ली देवबंदीज वगैरह थे, दे वर फेमस फॉर विडो रीमैरिज वगैरह, टू द एक्सटेंट कि कभी-कभी तो वो मतलब उल्टा खुश हो जाते थे कि कोई औरत क्या जो है ना वो शोहर जो है वो चला गया तो हम उसकी रीमैरिज करेंगे, ताकि जो टैबू था, विडो रीमैरिज इज स्टिल अ टैबू, राइट? पहले तो बहुत बड़ा टैबू था. उस टैबू को तोड़ने के लिए, तो उसको तोड़ने के लिए there are different ways that we can think about it, and I think we should emphasize the communal aspects and we should emphasize the responsibility of the community. ठीक है कि community की क्या जिम्मेदारी है. Sorry, just one last example. I know I'm going much over time, but just to emphasize this point, एक मूवी है गली बॉय. मुझे इसके बाद मुझे LRS कभी नहीं बुलाएगा, मुझे पता है इसके बाद मुझे कभी नहीं बुलाएंगे, बोलेंगे ये गंदी चीजें बताते हैं. लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें जो शोहर है ही इज अब्यूजिव, वो अपनी बेगम को मारता है, उसकी बेगम को घर से निकाल देता है. उसकी बेगम हैज नो वे टू गो. तो उसकी बेगम अपने बेटे को लेके अपने भाई के घर जाती है और यू नो आस्किंग फॉर हेल्प, और उसका भाई उसको कटा देता है, उसका भाई और उसकी भाभी उसको कटा देते हैं. And you know she ends up having to live with her son in like a very small bad place. So I think कि obviously you know one can work on both aspects, कि आप वो NGOs वगैरह भी बनाने के बारे में सोच लें जो उस औरत को हाउस करेंगी जब उसका भाई से घर से निकाल दे. लेकिन प्राइमरी जहाँ पे I think हमें काम करने की जरूरत है वो ये काम करनी होती है कि ये भाई किस किस्म का बेशरम भाई है कि उसने अपनी बहन जो उसके पास हेल्प मांगने के लिए उसको घर से निकाल दिया. अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरा लो ना भाई, मतलब you know, but take care of your family.
And I think that is where we need to focus our energies on. Jitni funding, jitne billions of dollars हम देते हैं इन organizations को, उसका कुछ हिस्सा अगर हम अपने माशरे में इन conversations पे लगा लें, you know, इन गुफ्तगुओं के ऊपर लगा लें कि भाई हम अपनी families का ख्याल करने वाले बने. जो औरत बेवा हो गई है तो उसके बाकी लोग कहाँ हैं जो उसकी जिम्मेदारी उठाएं. I think that, you know, I think that's an important solution. Okay, so Shiza Khan, you can now turn on your mic. थैंक यू. सो मेरे पास 2 सवाल हैं. पहला सवाल मेरा ये है कि जब भी हम मैरिज, मॉडर्न वर्ल्ड और वर्क की बात करते हैं, सो हमारे नैरेटिव जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव होता है वो ये होता है कि यू नो इफ लाइक क्या औरत बैलेंस कर सकती है वर्क को और मैरिड लाइफ को. लेकिन कभी भी हम ज़्यादातर ये सवाल हम नहीं करते हैं कि क्या मर्द जो है वो अपने वर्क को और अपनी मैरिड लाइफ को बैलेंस कर सकता है, क्योंकि हम इसको इस रग के अंदर घुसा देते हैं कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो बाहर जाके काम करे और औरत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बाहर जाके काम करे. तो जो है वो मुझे बस इसके बारे में पूछना था कि क्या ये इज दिस नॉट a big enough issue कि even if because balancing work and your married life does not mean that balancing your married life does not mean that you are present in your workplace and in your house. It also means how much emotionally present you are, right? So ये बस एक comment था और उसने मुझे सवाल ये करना था कि ये narrative हम क्यों नहीं इस पे बात करते. और दूसरी सवाल ये था कि जैसे कि आपने बोला कि और माशाल्लाह you were like so amazing with that कि you can't apply the same solution to every situation. Context is really important. So my question is कि आज की दुनिया में if अगर कोई एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो शादी करना चाहते हैं, तो और मतलब कि you know they don't even they're not even sure about each other yet, but they want to know each other, but they also don't want to involve their parents because they know if they're going to involve their parents it'll be a big thing. Like तो मतलब मेरा सवाल ये कि फिर how as a person who knows that this person is worth it navigate that path and वो उससे बात करे या ना करे, क्या करे, ये किस तरह से होगा? कोई इसका फिक्स फॉर्मूला है? कोई जो मतलब you know yeah. देखिए मुझे तो फिक्स फॉर्मूला नहीं पता. And it seems कि you know इन चीज़ों में generally fixed formulas होते नहीं हैं. To your first question though, to begin with that, मतलब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि you know मर्दों को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि you know मतलब can I balance work and family. और बिल्कुल ये conversation और ये वैसे होत भी नहीं है. And I also don't want to take away from the good work that a lot of organizations and a lot of scholars and ulama are doing already in Pakistan. So because as you said that, I was immediately again thinking about this book. Maulana Abdul Sattar जो है वो एक बहुत बड़ी figure है. वो defense में जो बैतुल सलाम मस्जिद है, you know, it is a very huge masjid. वो Kia Electric के दफ्तर के बिल्कुल साथ है phase 4 में कराची में. और वो वहाँ पे उनकी एक लेक्चर सीरीज थी रमजान में in which he like discussed all of these issues and he emphasized these things to मर्द कि भाई अगर आप ये कर रहे हैं कि आप 8-8 घंटे like 10-10 घंटे आप वर्क प्लेस में हैं और आप वापस आके मोबाइल के ऊपर लगे हुए हैं, तो आप बीवी को क्या टाइम दे रहे हैं? तो conversations हो रही हैं but nowhere to the extent that is needed. And I think definitely you know men need to think about these things. How am I going to balance these things as well? To the second part के मतलब कोई fixed formula for so what exactly do you need the formula for to figure out whether this guy is the right guy or whether this girl is the right girl for you to marry? No वो तो मतलब पता होता है इंसान को एक but you know fixed formula कि मतलब that now I'm confirmed about this guy and now I will you know कि इस point पे मैंने अपने parents को involve करना है. और फिर इस गिल्ट से बंदा किस तरह डील करे कि मतलब ये दिस इज नॉट राइट, यू नो माय पेरेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड एंड येट आई एम टॉकिंग टू दिस गाय, इवन इफ आई एम ऑब्जर्विंग माय बाउंड्रीज एंड हिज बाउंड्री, आई एम रिस्पेक्टिंग हिज बाउंड्रीज एज वेल. कि हम कोई गंदी बात नहीं कर रहे यू नो उस तरह की, लेकिन यू नो वी जस्ट
trying to know each other. लेकिन उस गिल्ट से बंदा कैसे डील करे कि भाई ये तो फिर भी गलत है, क्योंकि आप दोनों तो कोई महरम वगैरह कोई सीन नहीं है, लेकिन फिर भी आप बात कर रहे हैं क्योंकि आपको इवन इफ अगर आपकी इंटेंशन मैरिज के तो अच्छा सवाल है इसमें. आई मीन वन थिंग आई कैन थिंक अबाउट इज थोड़ा सा जैसे बड़े भाई बहनों के रोल को भी, इवन छोटे भाई बहनों के रोल को भी थोड़ा सा हम we can, like, they are also something to think about, and also like middlemen, like intermediaries वगैरह as well. So for instance, अगर आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहा है कि यार मैं डायरेक्टली बात करूँ और मेरे वालिदैन को पता चले तो बहुत बुरा लगेगा और उनकी नाफरमानी है ये वो, तो मे बी वन पॉसिबिलिटी कुड बी कि आप अपनी जैसे बड़ी बहन से कह दें या अपने बड़े भाई से कह दें कि भाई मेरे ये सवाल आते हैं जो मुझे इस बंदे से या बंदी से पूछने हैं, तो कैन यू डू दैट. Again, this is such an important question because the question of medium is very important. आप कहाँ पे कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं, and literally by medium I mean क्या आप WhatsApp पे बात कर रहे हैं या आप कॉल पे बात कर रहे हैं या आप ईमेल पे बात कर रहे हैं, तो इन इश्यूज से फर्क पड़ता है. और आप किसके थ्रू बात कर रहे हैं, आप डायरेक्टली कर रहे हैं या आप किसी और के थ्रू कर रहे हैं. So I think it's a good question, but exactly तो कोई जवाब इससे ज़्यादा I think देना बहुत मुश्किल है. Thank you. But the problem is not माँ बाप की नाफरमानी. The problem is, is it a नाफरमानी of Allah subhanahu wa ta'ala? That's the question. Like, कि अगर मैं इस तरह से किसी से बंदे से बात कर रही हूँ, even if the intention is marriage and boundaries observe हो रही हैं, लेकिन is Allah subhanahu wa ta'ala going to be, upset with that? Like, कि ये क्या हो रहा है भाई? ये सवाल है कि, तो फिर अगर मैं उसको जानूंगी नहीं तो फिर मैं कंपैटिबिलिटी कैसे फाइंड करूंगी कि वो मेरे लिए ठीक है, मैं उसके लिए ठीक हूँ. I mean, this is where the blurry, like there are something in Islam which are like gray, like black and white, and then there's something which are gray. So this is one of those gray domains. Obviously बहुत सारे, I mean, I think कोई शायद ही कोई आलिम होंगे जो आपको ये बोलेंगे कि भाई you don't have the right to ask any important questions from the husband. That's a given, right? So Zahira, you need to ask those important questions, before committing to a lifelong relationship. अब सवाल ये है कि वो किस तरह से होगा और किस दर्जे पे जाके होगा कि वो आपके कॉन्शियंस को सैटिस्फाई करे कि मैं शरई बाउंड्री से एक्सीड नहीं कर रही या नहीं कर रहा. एक तो अगेन इस मामले में a good place to begin is ulama. They have more knowledge, they have more wisdom, they have more experience. जाहिर है मैं तो मतलब आप लोगों से चंद साल ही बड़ा हूँ, बच्चा ही हूँ. लेकिन आप उनसे ये थोड़ा सा अगर ये इश्यूज डिस्कस करें, और अब तो खवातीन इतनी सारी उलमा, मतलब देयर सो मेनी वुमेन स्कॉलर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनसे थोड़ा सा ये इशू डिस्कस करें कि भाई मैं पूछना ये चाहती हूँ चीज़ें, व्हाट इज अ हलाल वे टू गो अबाउट इट. और अगर आप किसी इंटरमीडिएरी के थ्रू करिए तो आई थिंक कोई भी आलिम उसको बुरा नहीं कहेगा. मतलब अगर आप किसी बड़े भाई बहन के थ्रू उनसे वो सवालात वगैरह पूछ रही हैं या किसी म्यूचुअल रिलेशनशिप के थ्रू, तो उसको तो कोई भी आलिम मेरा नहीं ख्याल कहेगा कि नहीं ये आप अल्लाह की नाफरमानी कर रही हैं. Thank you so much. Jazakallah khair. I think we've gone well above time. We usually do talks of about 1 hour, 1 hour, 30 minutes, but it's well above time. Thank you, Hassan Bhai, first of all, for you. You also proposed this talk and we just accepted it. And we just really liked the title. It was really cool. And the talk was also really thought-provoking for me personally. And I also thank all the participants who waited this long and heard the discussions. I hope we all take something of value from these discussions that we had. Is it all right to end over here, Hassan Hamid? Bilkul. There is again a feedback form circulating. Everyone in the chat, please do that. And I'm so grateful. I mean, firstly, yes, ये LRS वाले जो काम कर रहे हैं बहुत नेक काम कर रहे हैं, and they are very responsive. As student societies को माशाल्लाह they are very responsive. और इतने कम टाइम में इसको अरेंज करना, इसकी वजह से जेनेसिस भी बहुत मजे का था. वो I was just having last Sunday a conversation with one of my friend, वो in the American context, like American Muslim context में थोड़ी सी ये बातें चल रही थी. I think हाँ यार, मतलब these are a lot of these are important issues and we need to talk about them. And हमारी अहलिया भी साथ ही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि वैलेंटाइंस डे पे, and she got very excited.
क्या देना है ना, या क्या ये चलते हैं ना वैलेंटाइन डे पे क्या दे रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि टॉक दे दूं, तो वो फिर जो है वो उनकी एक्साइटमेंट जो है थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन माशाल्लाह यू नो स्टिल अ लॉट, सो यू नो आई डेडिकेट दिस टॉक टू माय वाइफ who has been a huge source of support, and you know, as a Valentine's Day gift, it's probably the only gift that she's getting on Valentine's Day. But more than that, I you know, once again thank you to your Ares, and thank you so much for everyone who really, मतलब 1-1.5 घंटा Zoom पे बैठना बड़ा मुश्किल काम होता है, and you know, you guys stayed here, जज़ाकल्लाह खैर। और प्लीज़ 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 मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ कीजिए, मेरे वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिए, और मैं अपनों के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे अज़दवाजी रिश्तों में हमें एक दूसरे के लिए आँखों की ठंडक बनाए, और हमें हमारे वालिदैन के लिए आँखों की ठंडक बनाए। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। Until next time then. Barakallah, and I've put the link to the form again if anyone wants to click on the link, and I'm going to end this meeting. Thank you, everyone. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.